જે કેરેક્ટર શિવનાથ શર્મા ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ શાંતિ નિવાસ. જે જે ઘરનું નામ છે એનું શાંતિ નિવાસ છે ઘરનું નામ, જેમાં બાવરચી મૂવીઝના જેટલા બી કેરેક્ટર્સ છે they all are living together in a kind of a family and joint family. Basically થોડુંક એક ઇન્ટ્રોડક્શન એનું લઈ લે. ધ રામનાથ, મિસ્ટર હરિનાથ, મિસ્ટર કાશીનાથ and Mr. Vishwanath, they are the four son of Mr. Shivnath Sharma, along with their wife Sita Devi is a wife of Mr. Ramnath, and their daughter is Meeta. Harinath and his wife is passed away in a car accident. So there is only one character. Krishna is the daughter of Mr. Harinath. The third son, Mr. Kashinath, and his wife Shobha Devi, and his little son is Pindu Baba. And the fourth character is Vishwanath. Is a unmarried fourth son of Mr. Shivnath Sharma. And Shivnath Sharma is a retired person and old age kind of a character in the movie. In this movie, we have a lead role, late Mr. Rajesh Khanna, Jaya Bachchan, and the supporting role, there's Mr. Arun કરીને એક છે, આ એનું એક character છે. So they are leading the role in the movie. So basically કેવું છે કે okay, one more thing I want to share the awards related to this movie. So Mr. Rajesh Khanna having the awards for the best actor in 1973 and Pental. So he's the best comedian awards getting in the same 1973 from this movie. ઓકે, સો એક સ્ટોરી પર થોડું ફોકસ કરીએ કે સ્ટોરીમાં શું છે. તો એક જોઈન્ટ ફેમિલી છે, શર્મા ફેમિલી. સો સ્ટોરી અરાઉન્ડ ધ શર્મા ફેમિલી. એક જોઈન્ટ ફેમિલી છે. જોઈન્ટ ફેમિલી જે ઘરમાં રહે છે ઘરનું નામ છે શાંતિ નિવાસ. વોઝ ધ નેમ ઇઝ સ્પષ્ટ, જસ્ટ ધ સિનારીઓ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. ખાલી નામ જ શાંતિ નિવાસ છે, બાકી અંદર તો બધું સોલિડ એક એટમોસ્ફિયર એ લોકોએ ક્રિએટ કરેલું હોય છે. And the main thing is starting from the movie, we can see that everyone is depend on the servant. એટલે એમાં આખું જે મૂવીનો સિનારીઓ જે ક્રિએટ કરવામાં that is related to a servant, and એવું કહેવાય ને કે સર્વન્ટ નથી ને તો કોઈ જ કામ નહીં કરી શકે, અથવા તો બધાના સ્કેડ્યુલ ડિસ્ટર્બ થાય છે. So the totally dependency which is seen in this movie, that is on the depend on the servant, or we can say a bawarchi, or kind of a maid, any word we can take for them. So એક વસ્તુ હતી. So depending on the servant, so no any servant will stay here for more than a week or a month. આ એક સિનારીઓમાં બતાવવામાં છે કે કોઈ પણ નવો સર્વન્ટ આવે ને તો એ ફોર અ મંથ કે ફોર અ વીક થી વધારે ત્યાં સ્ટે નથી કરી શકતો. સમાવ રીઝન કે એ લોકોના કામ વધારે છે કે બધાના અલગ અલગ ડિમાન્ડ્સ હોય છે. સો રિલેટેડ ટુ ધેસ સર્વન્ટ આર નોટ સ્ટેઇંગ ધેર. ફેમિલી મેમ્બર્સ જે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહે છે, બટ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ આર હેટ ઈચ અધર એન્ડ there is no શાંતિ in શાંતિ નિવાસ. કે જે ઘરનું નામ છે એ પ્રમાણે મેં કીધું કે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં છે ને શાંતિ છે જ નહીં. સો એ રીતે છે. અને એમાં જે મેઇન કેરેક્ટર છે જે દાદુજી, એમનું એક સેન્ટેન્સ હતું કે આજકલ की बहू बेटी थोड़ी ना होती है, डॉटर इन लॉ होती है, मीन्स वो कानून की बेटी है. સો જ્યારે સર્વન્ટ આમાંથી એટલે જ્યારે પણ સર્વન્ટ એમાં ત્યાંથી ઘર છોડીને જાય છે, જ્યારે સર્વન્ટ અવેલેબલ નથી હોતા, એટ ધ ટાઈમ હુ વિલ ગોના લીડ. એટલે જ્યારે સર્વન્ટ ના હોય તો ઘરના કામ કોણ કરશે. સો દેટ્સ અ મેઇન સિનારીઓ દેટ દાદુજી જે એની પર એક સેન્ટેન્સ બોલે છે કે આજકાલ की बहू बेटी थोड़ी होती है, वो तो डॉटर इन लॉ होती है. डॉटर इन लॉ मीन्स कानून की बेटी. दिस इज अ सेंटेंस that said. We have some dialogues in the movies. किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते थे. તો એનો મતલબ એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે રાજેશ ખન્ના એઝ અ બાવરચી ઓર એઝ અ ન્યૂ સર્વન્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે, તો એ કેરેક્ટર એવું છે કે જે ઘરના જેટલા પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે દે આર હેટિંગ ટુ ઈચ અધર, દે ડોન્ટ હેવ અ ટ્રસ્ટ ટુ ઈચ વન, અને કોઈને કોઈનું કામ નથી કરવું અથવા કોઈને સપોર્ટ નથી કરવું. અને એ બધી વસ્તુમાં એ લોકો વચ્ચે થોડી ને થોડી કિટकिट ચાલ્યા કરતી હોય છે. સો ઇન ધેટ કેસ દેર આર સમ ડાયલોગ્સ that is delivered by Mr. राजेश खन्ना कि किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं. अनदर डायलॉग इज इस दुनिया में मैं जब तक भलाई रुपई और पैसों से ना तोली जाए वो भलाई नहीं कहलाती. मतलब जब भी वो हम लोग कुछ काम करें वो उसको पैसे के साथ हम लोग तोलेंगे नहीं तो भलाई नहीं कहलाती. मतलब किसी का हेल्प करना या फिर काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसको जब हम लोग पैसों से नहीं तोली जाएगी तो भलाई नहीं कहलाएगी. वन मोर डायलॉग इज इन मूवी, लोग जिंदगी का सबसे छोटा और सबसे कीमती लफ्ज भूल गए हैं, दैट इज प्यार.
So that is which is missing in the joint family or जो family है उनके around. This is the purely missing the things that we had seen so far कि they are living together but they are not having the feelings or something for each other. And one more dialogue in the movie, it's very important for everyone and for us also. It is so simple to be happy but it is too difficult to be simple. मतलब खुश दिखना और वो सब दैट इज ओके और वो इतना सिंपल है कि हम लोग दिखा सकते हैं या फिर खुश रह सकते हैं बट इट इज टू डिफिकल्ट टू बी ए सिंपल मतलब सिंपल होना और बनना इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ये कुछ डायलॉग्स है एंड वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग्स इन द मूवीज, खुशी के गाने तो बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह है, जलते हैं और बुझ जाते हैं, लेकिन उदासी अगरबत्ती की तरह है, वो जलती है देर तक और उसके बुझाने के बाद भी महकने का काम करती है. उसका ये डायलॉग कब आता है कि उनका जो चौथा बेटा है जो अनमेरिड है विश्वनाथ, उसको ना गाने लिखने का शौक है, वो लिरिक्स करता है, म्यूजिक डायरेक्टर है. तो वो जब कुछ गाने सोच रहा होता है तब राजेश खन्ना की उसमें एंट्री होती है एंड ही सेड कि मैं अभी सैड मूड में हूँ, आई वांट टू क्रिएट सम सैड म्यूजिक. तो एट द सेम टाइम राजेश खन्ना ये डायलॉग डिलीवर करता है कि खुशियों के गाने तो बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह होते हैं बट जो उदासी की अगरबत्ती है वो धीरे धीरे जलती है और देर तक महकती रहती है. एंड वन मोर फेमस डायलॉग फ्रॉम दिस मूवी अगेन, अपना काम तो सभी करते हैं, थोड़ा सा दूसरों का काम करते तो देखिए कितनी सुख मिलता है उसमें. सो दिस इज द काइंड ऑफ ना हार्ट टचिंग काइंड ऑफ डायलॉग इन द मूवी. उसमें ये दिखाया गया कि जो काम के लिए आपको उसको रखा गया था बावर्ची को, सो दैट इज ओनली फॉर द कुक बट ही डू एवरीथिंग. वो कपड़े भी धोता है, प्रेस भी करता है, बर्तन साफ करता है, खाना भी बनाता है सबके लिए, कुछ ना कुछ मतलब वो सभी काम वो करने में अपना एक इनपुट दे रहा है. सो एट द सेम टाइम ये डायलॉग वो डिलीवर करता है कि अपना काम तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा सा दूसरों का काम करते तो देखिए उसमें कितना सुख मिलता है. So these are the main dialogues that I had heard in the movies. Sorry. Okay. So मैंने यहाँ पे टाइटल लगा के लर्निंग बट उसके थोड़ा हम लोग विपरीत और रिलेटेड टू द मूवीज हम लोग कुछ वर्कआउट करेंगे. सो एक सर्वेंट इज अ कीवर्ड मैंने यूज किया, फिक्सेस द प्रॉब्लम ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि शांति निवास है लेकिन उसमें शांति नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पीपल्स आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर. उसमें 3 या 4 सगे भाई रहते हैं, उनकी वाइफ है, उनके बेटियां है बट दे आर नॉट गेट टूगेदर इन एनी ओकेजन्स. वो लोग चाय पीते तो हर एक अपने अपने कमरे में चाय पीते हैं. सो फैमिली गैदरिंग इज अ काइंड ऑफ वहाँ पे एक दिखाया गया कि वो फैमिली गैदरिंग नहीं है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करें एंड ऑल द थिंग्स. सो एक सर्वेंट ऐसा आता है कि जो सबके प्रॉब्लम फिक्स करता है और वो क्या करता है कि अपनी जो उसकी जो खुद की एक इंटेंसी है कि वो उसका जो पॉजिटिवनेस है वो पॉजिटिवनेस वो फैमिली के अंदर वो स्प्रेड करता है कि आप खुश रहो, एक दूसरे से शेयरिंग करो या फिर एक दूसरे को हेल्प करो या टीम वर्क करो काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पे एक चीज है कि वी रियली सी द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन अमंग द फैमिलीज, दैट इज द सेम आई जस्ट सेड. हाँ, one more thing, how the common people suffer from day to day activities and how to deal with them when especially when we are in a joint family. So the common peoples, वहाँ पे एक और सेंटेंस बट आई वाज नॉट अग्रीड विद दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. उसमें एक सेंटेंस बोला गया था कि एवरीवन नीड्स अ सर्वेंट और एवरीवन हैविंग अ सर्वेंट. बट ऐसा नहीं होता कि आज सबके घर में सर्वेंट होता है. we some of us also with living with the family or joint family, but सबके घर में सर्वेंट नहीं है बट स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर और एक दूसरे के साथ हम लोग काम करते हैं. लेकिन उसमें जो दिखा गया कॉमन पीपल आर सफर्ड फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज when everybody is working. So how to deal with that? So that is a kind of a thing in the movie. And one more thing, the spread the happiness around you and this is the most beautiful things we can do. So जो मेन जो कैरेक्टर है राजेश खन्ना का, उसका एक ही काम है इस मूवी में कि वो उसने एक सेंटेंस बोला था लास्ट मूवी के एंड में कि मैंने जो वो एक प्रोफेसर, ही इज अ प्रोफेसर बाय ऑक्यूपेशन, बट उसने प्रोफेसर करते करते एक चीज उसने सीखी कि मैं प्रोफेसर बना
मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए और दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है या छोटे छोटे घर में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो उसने क्या किया, प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी एंड वो सर्वेंट बन के हर एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर उसको लगता है कि जहाँ पे जो फैमिली में प्रॉब्लम्स है वहां पे जाता है वो, एंड वो ऐसे ही हैप्पीनेस स्प्रेड करता है सबको। अपने जो पॉजिटिवनेस है वो पॉजिटिवनेस दिखाता है, और वही पॉजिटिवनेस से वो लोगों में भी या फिर फैमिली मेंबर्स में भी पॉजिटिवनेस लाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है उसमें देखा जाएगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना के आने की वजह से सब लोग धीरे धीरे एक एक टेबल पे आके चाय पीने लगे, इंटीग्रेशन हो गया सबके फैमिली में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द पॉजिटिवनेस इन द माइंड। सो उस पॉजिटिवनेस की वजह से आपके काम में फर्क पड़ता है एंड आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। सो मूवी में एक और सीन दिखाया गया कि उनका जो बड़ा बेटा है, ही वाज अ हेड क्लर्क इन द पर्टिकुलर कंपनी। तो उनको ना बॉस बहुत डांटता था कि आप हमेशा लेट आते हो, आपका काम ठीक से नहीं हो रहा। सो जैसे ही वो सर्वेंट आता है उसके लिए जो एटमोसफेयर में जो चेंजेस आते हैं, तो वो एटमोसफेयर के चेंजेस की वजह से उनको भी एक growth मिलता है। So and for the growth, anything you wants to achieve, it's very important to be happy, calm, and the atmosphere around you is must be positive and peaceful. So ये कुछ चीजें मैंने आज वर्कआउट किया था कि हाँ ये चीज होनी चाहिए तो आपके काम में आपको काम करने का मजा आएगा। अगर आपके माइंड में कहीं पे भी आप मेंटली डिस्टर्ब हो या फिर आपके अराउंड द एटमोसफियर है वो अच्छा नहीं है, तो आपके काम में उसकी इफेक्ट आएगी। एंड हमको भी वो पता है, हम कहीं ना कहीं हम लोग भी वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस कर चुके होंगे शायद। सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन शो। सो उसकी वजह से उनको भी एक ग्रोथ मिलता है, उनको अपना बॉस कहता है कि नहीं आपका काम अब अच्छा हो गया, वो दूसरे को भी काम करते हैं वहां पे। तो वो वाला सेंटेंस वो भी डिलीवर करते हैं अपने एक ऑफिस के कलीग को कि मेरा काम तो मैं कर लूंगा लेकिन तेरे काम करने में जो मुझे खुशी मिली है वो कुछ और ही है। सो ये वाला पूरा एक सिनेरियो वहां पे क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम द मूवी कि आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिवनेस का जो फायदा है दैट इज यू कैन सी इन योर around your atmosphere, in your family, in your work and all. Trust to each and everyone and work together, kind of a teamwork. So these are the things we can learn from this movie. Yes, and this one, and do not depend on any other. So this is the best part of the movie. Thank you. Wonderful. Round of applause to Vaishak for making that presentation. Thank you very much. How many of you actually seen that this movie बावर्ची? आप सबने देखी आपका है? यहाँ से कितना दूर है अभी और? All right, so everyone has नहीं seen. I mean, it's a very funny movie. ऋषिकेश मुखर्जी का typical style वाला movie है, and it is extremely interesting. And a couple of things that I personally found very useful and very interesting in the movie is के वो पहले आप घर देखो ना, so like वैशाख said कि वो शांति निवास है, but actually परमानेंटली अशांति है वहां पे, वैसा वाला एनवायरनमेंट है। सब लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, पीपल डोंट लाइक, वो एक दूसरे से बात करते तो भी टॉन्ट में बात करते हैं। that was the kind of culture or that was the kind of environment. So if someone looks at it from outside, तो ऐसा लगता है कि भाई इनका तो कुछ भला होने नहीं वाला है, there is nothing that is going to go right for them. But how one person, ठीक है, जो ये राजेश खन्ना वाला जो कैरेक्टर है, जस्ट वन पर्सन कमिंग इन विथ अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, लाइक राजेश खन्ना का कैरेक्टर इज फॉर एवर स्माइलिंग, लाफिंग। वो कभी देर इज नॉट इवन वन सीन जहाँ पे उसको ऐसा दुखी बताया, except the end scene which is a different context. Yeah. But he's generally always laughing और हंसता हंसता ही बताया है उसके अंदर. So how this one person with this positive orientation and this positive attitude can actually turn the entire family around. So हम जो बोलते हैं ना कभी कभी कि भाई ये गॉन केस है, इसका कुछ आगे होगा नहीं, but I think this movie kind of gives us that lesson or gives us that proof that nothing really is gone case. If certain efforts are put in the right direction with the right spirit, then a lot of things can happen. Now this is a learning which can be applied in business also. कि अपने टीम में इन अ लॉट ऑफ आवर बिजनेसेस, आई डोंट नो आपके वहाँ पे होता है कि नहीं, आई एम श्योर जो मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कुछ लोगों के बीच में कभी जनरली बनती नहीं है, and there are always a few people, and if you are a bigger organization then departments,
there are certain departments जिनके बीच में नहीं बनती है, right? So the stores guy and the maybe the transport guy, उसके बीच में कभी बनती नहीं है. HR वालों की मोस्टली किसी के साथ बनती नहीं है, हमारे right? टर्म्स So में डेवलपमेंट और general, क्यूए की टीम की नहीं बनती है. sorry. डेवलपमेंट एंड क्यूए का जो टीम होता है ना उसमें नहीं बनती है, क्योंकि डेवलपमेंट क्यूए का काम है कि खाली गलतियां निकालो सॉफ्टवेयर से. Correct, correct. So, यस. but even in those scenarios, if it is approached in the right spirit and with the right kind of attitude, then a lot of things can change. Was my learning from it. One. Second is that when Rajesh Khanna's character, वो जो बावर्ची होता है, he joins the household as in the role of a बावर्ची. वही उसका designation है, वही उसका काम है, वही उसके लिए वही job vacancy है. बट जब वो आता है देखता है कि वही जो आई मीन द फ्लोर इज अ लिटिल डर्टी, तो वो आते ही बैठ जाता है वो साफ करने के लिए. तो लोग उसको आके बोलते हैं, अरे अरे क्या कर रहा है, ये तुम्हारा काम नहीं है, वो कोई और आके कर देगा. सो ही सेज वेरी ब्यूटीफुली, ही सेज अपना काम तो सभी करते हैं, दूसरों के काम करने में जो मजा आता है उसका, वो आपको कैसे समझाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड ही डज दिस मल्टीपल टाइम्स. सो बावर्ची है, खाना बनाना है, करेक्ट है, बट ही डज एवरीथिंग. लॉन्ड्री भी कर देता है, किसी और को कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी कर देता है. And this especially nowadays is very rare to see. हम लोग जनरली अपने को क्या है कि ABCD जो बोला है बस उतना ही करना है, उसके बाहर का अगर करना है तो थोड़ा सा मुंह बना के करेंगे, और we will prefer not to do it. or a lot of us might even try and avoid getting into things which are not in our so-called purview of responsibility or a product or service that we are able to give. But here is a person जो who is going beyond his area of service, and there is a concept कि भाई सर्विस में भी आप लीडरशिप ला सकते हो. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लीडर ही सिर्फ सर्विस दे सकता है, बट इवन विद व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस, दैट लीडरशिप कैन कम इन. एंड द थर्ड लेसन फॉर मी वाज के happiness is probably not the destination, but happiness is finding happiness on the way to happiness. राइट. सो वो जो जर्नी है उसके अंदर हाउ डू वी बी हैप्पी, प्रोसेस में हाउ डू वी बी हैप्पी. आई थिंक दीज वर सम ऑफ माय लर्निंग्स फ्रॉम इट. इफ एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग, जिन लोगों ने देखा है मूवी, नीरव भाई, रुद्रिक, प्रतीक, इफ यू गाइस वांट टू शेयर क्विकली, वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स. I'll go first. यस प्लीज. શરૂઆતમાં છે ને જ્યારે પિક્ચર ચાલુ થાય છે ને ત્યારે છે ને રેડિયો પર એક એનાઉન્સમેન્ટ થતી હોય છે કે એક ચોર આવ્યો છે શહેરની અંદર, આવું તેવું કરે છે, આમ તેમ કરે છે. અને આખા પિક્ચર દરમિયાન રાજેશ ખન્ના છે ને પેલી દાગીનાના બેગની સામે આમ ત્રાસી નજરે જોયા કરે છે. એ જે સસ્પેન્સ ક્રિએટ કરે છે ને એ છેલ્લે એન્ડમાં જઈને છૂટે છે. બાકી છેલ્લે લગીને આપણે એવું જ જાણીએ કે આ ચોર જ છે. આ ખાલી બધા ઢોંગ કરી રહ્યો છે આખા પિક્ચર દરમિયાન. એ ઋષિકેશ મુખર્જીનો એક માસ્ટરપીસ છે. करेक्ट. सो वही जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वही है टाइप्स. Like there might be other things. All right, good. Anything else? जैसे उसको भी अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था बावर्ची, पर ही वाज क्लीनिंग द फ्लोर, जो आपने एग्जांपल दिया. समटाइम वी एक्सपेक्ट कि भाई हमने को काम ही कहाँ दिया है, बट टू शो योरसेल्फ, टू प्रूव इन बिजनेस और इन योर प्रोफेशन कि भाई आज कुछ सामने वाले को क्वालिटी दिखाना है. एंड सेकंडली व्हाट एग्जैक्टली लाइक, जो उसको ड्रिंक के साथ वो नमकीन लाके दे रहा है कि भाई एंजॉय दिस सेल्फ. समटाइम वी नो आवर एम्प्लॉइज, पर उसको एडिशनली क्या चाहिए होगा, इट्स नॉट इजी टू नो, बट अगर हो सकता है तो वी कैन put a cherry on the cake. That would be one of the learning which I learned कि भी हम पेमेंट तो सैलरी दे रहे हैं, but what could be, let's say anniversary है, ऐसा special day, we can half day leave, full day leave, ऐसा कुछ भी, which I have learned from this. This is one of the things which I have been taking. Brilliant. Anyone else? Can I please? Yes, please. Few things were, number one, to spread happiness, no reason is required. Number two, when you lead, it means lead by example is a leader's way of working. He also, if he wants to do anything, he leads, like clean the floor, so and so. He leads by example. So that is what a leader does. They normally lead by example, and they have a wide, they can do any work. Suppose any department it is, anything. Welding, okay, come on, I'll show you. वो नहीं आता है तो भी 2 दिन जाके सीख के कर लेता है. So that is the way a person does. And
Third thing is don't drink alone. You should have somebody with you. Of course, very important learning. Perfect. Good. So thank you very much once again, Vaishak. Very nice presentation. Before Rashesh bhai, you have sharing rights, but before you start your presentation, I just want to formally welcome all the participants of batch 2 who have joined today. So welcome Shashi bhai, welcome Kalpesh bhai, Avinash. Who else is here from batch 2? Yeah, that's it. So welcome all of you. Batch 1 wale, please welcome your fellow learners. You guys are Thank you 6 so months much. ahead of them, Everyone. and yeah, Thank so you. thank you very much for joining. Thank you. All right, Rashesh bhai, over to you. ટ્રાય કરું મારાથી શેર સ્ક્રીન થાય છે જોઈ લો. ઓકે થઈ ગયું. Yes, perfect. Please go ahead. So first of all, good evening all. Thank you for Krishnadas to giving me such a opportunity, the great book, the 1 Minute Manager. And thank you Akshay for making PPT in short time actually. So thank you Akshay. This is my first time giving a presentation in front of such a high class people. So don't go my language, so but by my emotions. So do you want to know an efficient manager manage people, or do you want to know how to the effective manager, to how to do you bring happiness and productivity in your group? So this is the best book written by Ken Bencher and Spencer Johnson. So very good books. So next વિશાખ નેક્સ્ટ ક્યાંથી કર્યો છે ભાઈ? એરો કી કર દે, એરો કી. Arrow key નથી થતું. સ્ક્રીન પર ક્લિક કરીને નેક્સ્ટ કરો થશે. શેની પર? સ્ક્રીન પર ગમે ત્યાં ક્લિક કરીને નેક્સ્ટ કરો ને થશે. ओके ओके. सो इंट्रोडक्शन परिचय. ये जो दो ये बुक है एक्चुअली एक यंग गाय से शुरू होती है. ये जो यंग गाय है, मतलब यंग मैन है जो ईगर होता है कि एफिशिएंट पर्सन या एफिशिएंट मैनेजर कैसे बना जा सकता है. वो डिफरेंट जगह पर जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी में जाता है, कहीं होटल्स में जाता है, कहीं रिटेल स्टोर पर जाता है. वहां सब देखता है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, पर एक्चुअली वहां के जो लोग हैं वो हैप्पी नहीं है, मतलब उनके काम से खुश नहीं है. तो एक मतलब वो एक अच्छे इफेक्टिव मैनेजर की शोध में या इधर उधर घूमता है, निराश होकर बैठ जाता है. पर कहीं किसी को उसको पता चलता है एक टाउन में एक इफेक्टिव मैनेजर है, तो वो उसके पास जाता है और ये जो मतलब 1 मिनट मैनेजर है उसके बारे में पूरी जर्नी एक बुक में लिखी गई है. इसमें बहुत से बड़े 3 सीक्रेट डाले 1 मिनट मॉडल. मतलब 3 क्या है? 1 मिनट गोल, 1 मिनट प्रेजिंग एंड 1 मिनट रिडायरेक्शन. मतलब 1 मिनट, ये 3 सीक्रेट पे पूरी बुक लिखी गई है. सो फर्स्ट इज 1 मिनट गोल. कहाँ ऐसा होता है कि मेरे को जिससे पता है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट देखो, इसमें जो पिक्चर पता है कि सेट ए गोल, मेक प्लान, पर कहीं सीधा ऐसा होता है गेट टू वर्क. जैसे ज्वाइंट हुआ, जैसे न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, गेट टू वर्क मतलब जिस बंदे को आप रख रहे हो, जिस इंसान को अपने काम पे रख रहे हो, तो सीधा ये आपका डेस्क है, आप ये इसका लैपटॉप है, आप चलाओ और आपको जो काम करना है वो आपके बाजू वाला या आपका कलीग सिखा देगा. ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है. पर यहाँ ये ऑथर कुछ डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि एग्री ऑन योर गोल्स. मतलब एक दूसरे के जो गोल्स है, मतलब आपके कलीग्स या स्टाफ या आपके मेंबर्स जो भी है उनके साथ अपना गोल्स शेयर कीजिए और उनके साथ एग्री कीजिए. दूसरा है डिसाइड फर्स्ट व्हाट ए गुड जॉब शुड लाइक. मतलब क्या होता है, हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा काम मिले, पर कैसे.
वो उसको बताना जरूरी है कि अच्छा काम किसे कहते हैं। फिर ईच ऑफ योर गोल इन लेस देन 250 वर्ड्स इन सिंगल पेज, मतलब आपके जो गोल है वो 250 वर्ड्स के अंदर सिंगल पेज के अंदर आ जाना चाहिए पहले तो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल्स बहुत बड़े ज्यादा लिखोगे तो आप उसको पढ़ने के टाइम, इसमें आगे भी है कि ये गोल 1 मिनट में मतलब पढ़ सकते हो, कंटिन्यूस पढ़ोगे जब तक तो आपको आसान लगने लगेगा ये गोल्स। तो ये पूरा टेक ए मिनट टू लुक ए प्रोग्रेस तो योर वर्क फ्रॉम टू टाइम टू सी इफ यू वर्क इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड योर गोल, मतलब आप 1 मिनट ये गोल के जो अपना जो गोल लिखा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ोगे, 1-1 मिनट के बाद 1 मिनट दोगे उसको, तो आपको पता भी चलेगा कि आप वो गोल की तरफ जा रहे हो या फिर कोई डायरेक्शन बदल गया है। तो आप मानो या ना मानो, तो ये सब कहते हैं कि 1 मिनट में ये सब कुछ हो सकता है, पर पीपल वो गुड फील अबाउट देमसेल्फ प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, मतलब ये एक सीक्रेट उसने बताया। सेकंड इज 1 मिनट ट्रेसिंग, मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं लोग स्टाफ के या मेंबर्स या अपने टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट करने में बहुत कंजूस होते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में बहुत कंजूस रहते हैं कभी कभी उसका ऐसा है, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड दिखाने वाले टाइम में क्या होता है कि चलो रिव्यू मीटिंग होगी तब अच्छा काम किया था तब सबके सामने उसको अप्रिशिएशन दे देगी। पर ये चीज यहाँ पर ऑथर्स ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि ग्रेटिट्यूड इंस्टेंट आप उनको दे दो, मतलब जैसे अच्छा काम हुआ है आपको रिकॉग्नाइज होता है तो तुरंत आप उसको चाहे आप दूर हो तो फोन से दे दो या आपके मतलब साथ में हो तो जाके मतलब दे दो, पर तुरंत उनको एप्रिसिएशन दे दो। और छोटे छोटे जो होते मतलब उनके जो अच्छे काम होते हैं उसको सराहो, क्योंकि लेट द स्टाफ नो व्हाट वर्क दे हैव डन वेल, मतलब उनको बताओ कि छोटे छोटे काम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो लेट द स्टाफ नो हाउ मच यू एंजॉय देयर गुड वर्क एंड इट कैन हेल्प कंपनी एंड अदर स्टाफ, मतलब जो आपने अच्छा काम किया है तो उसमें कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा हुआ है और आपसे आपको देख के हमारे स्टाफ मेंबर जो दूसरे भी है तो कितना मोटिवेट हुए, ये बहुत बड़ी चीज है। कई कई लोगों को तो क्या अपने मोटिवेशन की बहुत कमी रहती है, मतलब कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको पता ही मतलब मैनेजर को भी ऐसा लगता है और ऑनर को भी ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ आता है या पता है क्या करना है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आपको क्या करवाना है उससे क्लियरिटी उसको देनी पड़ती है। तब ये सब क्या है ऑर्गेनाइजेशन, और क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक वो, अभी क्या हम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, पर आदमी पे इन्वेस्ट नहीं करते। जब तक आदमी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आउटकम प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को आदमी पे इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो डोंट से एनीथिंग फॉर अ सेकंड सो दे फील हाउ टू गेट से फील, मतलब आप उसको अच्छी तरह से अच्छा उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, प्रेजिंग दे रहे हो, पर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बोलते समय, तो उसको भी एहसास होए कि आप इतना अच्छा उसके लिए सोच रहे हो। वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप बोलते जा रहे हो बराबर है, पर उसको भी फील आनी चाहिए कि हाँ आपने उसको काम को सराहा है। ये दूसरा सीक्रेट है। अभी तीसरा सीक्रेट है 1 मिनट रीडायरेक्शन। इसके अंदर क्लियरली मतलब लेट द स्टाफ नो एडवांस दैट यू विल रिस्पॉन्ड देयर वर्क टू क्लियरली। इसमें बहुत बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, मतलब मैंने सुनी थी शायद इसमें ही है। डॉग है अपना घर के डॉग, वो पॉटी कर देता है अपने बेडरूम के अंदर सपोज, तो हम उसका कान खींच के बाहर ले जाते हैं और बोलते हैं यहाँ तेरे कान खींच के बाहर ले जाते हैं, पर हमने डॉग को सिखाया नहीं कि तेरे पॉटी आए तो बाहर जाके करना, और फिर चिल्लाते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्लियरिटी हम उसको नहीं देते कि तेरे को क्या काम करना और कहाँ पर करना और कैसे करना। तो ये बहुत ही क्लियरिटी उनके साथ पहले ही दे दो कि हमको क्या चाहिए। सो और मिस्टेक हुई मतलब रिप्राइमेंट इमीडिएटली इफ ए मिस्टेक इज मेड, मतलब भूल हुई तो तुरंत डांट दो। ऐसा नहीं कि मतलब छोटी भूल हुई तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो ये भूल इग्नोर करते हैं, थोड़ी बड़ी मतलब 4-5 इकट्ठी हो जाए तो एक साथ में बोल देंगे, पर उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं जो एक होल मतलब एक बड़ा डैम में से छोटा होल होता है,
तो उसमें आप तुरंत नहीं भरोगे तो बड़ा होल हो जाने के बाद डैम टूट जाता है। तो जब जब बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है एक साथ में आप बोलोगे ना, तो उसको ही समझ नहीं आएगी, मतलब सामने वाले को, कि एक्चुअली वो कौन सी मिस्टेक पे आप उसको समझा रहे हो, या उसको बोल रहे हो, या उसको डाल रहे हो। मतलब छोटी मिस्टेक हो तो आप तुरंत ही उसको बता दो ताकि वो दोबारा मिस्टेक ना करे। सो एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट इज रॉन्ग विथ द स्टाफ। मतलब देखो स्टाफ, मतलब स्टाफ के साथ ये जो मिस्टेक आपने हुई है, तो स्टाफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगी, या एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन कर दो बहुत ही अच्छी तरह। टेल द स्टाफ व्हाट यू रियली फील इन द मिस्टेक, मतलब स्टाफ को भी बता दो। और क्या है, एक्चुअली 1 मिनट मैनेजर ऐसा होता है कि आंख में आंख डाल के मतलब बोल देता है कि भाई इसमें तेरी ये मिस्टेक हुई है, और उसको बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं, 30 सेकंड के अंदर समझा दो कि ये तेरी भूल हुई है। और हम क्या करते हैं एक्चुअली, मिस्टेक पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते, पर आदमी पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ तेरे से तो ऐसा ही होता है। एक्चुअली ये जो बड़े मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड लीडर, मतलब अच्छे लीडर की निशानी नहीं है 1 मिनट मैनेजर। उसको बहुत ही मतलब ये बोलते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाता है, प्रॉफिट मिलता है पर हैप्पीनेस नहीं आती, प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और ये मतलब डांटने के टाइम भी मतलब कंटिन्यूस डांटो वो भी नहीं, 30 सेकंड डांट के फिर छोड़ दो, फिर थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर बाद में बोलो, तो उसको उसकी गलती का एहसास हो, वो अंदर ही अंदर एनालिसिस करेगा कि मेरी गलती कहाँ हुई। तो ये भी बहुत बड़ी एक लर्निंग है उसमें। और स्टाफ से हाथ मिलाओ तो भी ऐसे मिलाओ कि मतलब उसको ग्रेटिट्यूड, उसको अच्छा लगे, तो मतलब उसको ऐसा लगे कि तूने गलती कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं, पर ये गलती फिर से ना हो, तो उसको भी ऐसा ध्यान रहेगा। रिमाइंड द स्टाफ हाउ इम्पोर्टेंट योर माइंड इज टू देम। और यहाँ सब ये बड़े मतलब एंटरप्रेन्योर भी है, बड़े बड़े बिजनेस, ये सबको पता है कि स्टाफ के बिना बिजनेस ग्रो कर पाना नामुमकिन हो गया है आज की डेट में। जब तक हम जो जहां हमारा जो गोल है ये, तो उनको भी थोड़ा क्या इम्पोर्टेंट देना चाहिए। पर कैसे, कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब चाहे प्यून से लेके डायरेक्टर लेवल से सब कुछ एक ही लेवल से नहीं काम कर सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट ज्यादा है। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई 50 ओवर्स में पहला बॉल भी इतना इंपॉर्टेंट से होता है, 300 मतलब 300 में बॉल भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक। सो और ये बहुत सारी लर्निंग मैंने इसमें से सीखी है, पर उसमें से मैंने थोड़ा अपना अलग निकाल के लिखा है। So I have been able to give a fair feedback to staff. इसमें से बहुत बड़ी लर्निंग मैंने सीखी है, but it has helped the entire team to work more efficiently with clarity and focus and inner and final coordination. ये बहुत बड़ी चीज मैंने इसमें से सीखी है सबसे ज्यादा। और थर्ड वन इज it was created a positive environment around me by appreciating my staff and booster their confidence. So thank you from my side. I am learning so much in this thing. और बहुत ही अच्छी किताब थी, और मैंने एक्चुअली ये बुक गुजराती में भी पढ़ी, इंग्लिश में भी पढ़ी, तभी मेरे को थोड़ा क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। So thank you very much KD for such a giving opportunity. Thank you. Brilliant, brilliant. Thank you very much, Rashesh bhai. Good presentation. I like the spirit that how you did the presentation also. So thank you very much for that. It's a very very simple book. I don't know how many of you actually read it. Of course, batch one members, so I'm sure you've read it because it was assignment. But the other people, पता नहीं मैंने आपने पढ़ा है कि नहीं. But it's a very simple book. 100 पेज से भी कम है शायद, राजेश भाई. 80 pages. 80 पेजेस एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल. એટલે उसमें दिया हुआ ही है कि ये स्टेप्स कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं वगैरह चीजें. गोल्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिटेल, सो उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ. बट 2 थिंग्स जो सेकंड और थर्ड सीक्रेट है, वन इज के 1 मिनट प्रेज. बराबर. उसमें द बुक इट सेज दैट यू शुड प्रेज अर्ली एंड प्रेज फ्रीक्वेंटली. यानी जल्दी प्रेस करना चाहिए और बार बार प्रेस करना चाहिए. अब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना ये अप्रिसिएशन ऑफ प्रेज कहीं आता नहीं है. हमारे पेरेंट्स ने हमको कम किया तो हम भी दूसरों को कम करते हैं. वैसा है अभी का जनरेशन. मे बी इट इज स्लाइटली डिफरेंट, बट दिस प्रेज इज नॉट समथिंग दैट वी आर यूज्ड टू.
और अपना आई मीन इफ यू आर 35 एंड अबव, आपको आके कोई ऐसा बोल देना कि यार आज आपका शर्ट बहुत जोरदार है, 5 सेकंड के लिए आपको पता नहीं चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड क्या करो। ये अच्छा तो लगेगा बट हाँ ना पण ये तो ठीक है या तो वो जुनू है करके वी विल डिस्काउंट इट, राइट, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट एंड हाउ टू टेक प्रेज। तो जब हमको आता नहीं है हम दे कैसे राइट। बट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच इज शेयर्ड इज कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। बच्चा जब फर्स्ट स्टेप लेता है, लड़खड़ाता है, तभी भी वी क्लैप एंड से ओ हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग उसको उसेन बोल्ट बनने के लिए राह नहीं देखते ना कि भाई चक्कर मारेगा फिर अपने प्रेस करेंगे, राइट, वी डोंट, वी प्रेज अर्ली एंड वी प्रेज फ्रीक्वेंटली एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका एनकरेजमेंट बढ़ता है, राइट, वो और ट्राई करते हैं। दैट्स अ इनबिल्ट मैकेनिज्म दैट वी हैव कि भाई हमको कोई अगर कुछ अच्छा बोले तो वी वांट टू डू अ लिटिल मोर ऑफ दैट, वी वांट टू डू सम मोर, नेक्स्ट टाइम भी मेरे को ये प्रेस चाहिए टाइप्स। So using this with team members, with employees, even with people within our network, it's something that we should try and do more frequently and naturally. Forcefully नहीं, ये घटिया शर्ट पहन के आए तो भी प्रेस करो वैसा वाला नहीं, but genuine appreciation, genuine praise. The second is ये जो थर्ड सीक्रेट है 1 minute, क्या बोलते हैं उसको 1 minute, I'm forgetting the term. रिडायरेक्शन। Redirection. रीडायरेक्शन, यानी गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको टपली मार के राइट डायरेक्शन में कर दो, दैट इज बेसिकली द आइडिया। उसमें देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग के पीपल डोंट लाइक टू बी मैनेज्ड, ठीक है, पीपल दे डोंट लाइक टू बी मैनेज्ड, दे वांट टू बिलीव कि दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। यानी आप अगर मैनेजर हो, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि भाई उसको बहुत मजा आया है, बट फंडामेंटली हम किसी को नहीं पसंद है कि कोई हमको डंडा मार के बोलते रहे कि भाई ये कर ये कर ये कर, राइट। सो क्रिएट सिस्टम्स, फीडबैक सिस्टम, उसको इनपुट देने का सिस्टम, वो करेक्ट करने का सिस्टम इन सच अ वे कि वो खुद को मैनेज कर पाए। उसमें मैनेजर्स के बारे में भी बोला है कि हमारा ऑब्जेक्टिव एज मैनेजर्स शुड नॉट बी टू मैनेज पीपल, it should rather be to create a culture जहाँ पे people manage themselves. That should be the idea. मतलब मेरे को उठ के सुबह को ये नहीं सोचना है कि भाई आज सब लोग ऑफिस आएंगे कि नहीं आएंगे, बट आई क्रिएट अ सिस्टम कि भाई उनको काम है, दे विल कम टू द ऑफिस, राइट, दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे विल एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट टू मी एंड से कि भाई इतनी चीजें हुई है, इतनी चीजें नहीं हुई है। और फीडबैक के बारे में जो राजेश भाई ने भी बोला, द बुक इट मेंशंस दैट आप फीडबैक एक्शन पे दो rather than intention, right, कि भाई तूने ये गलत किया, that is the feedback on action. तू तो यार दर वक्त आउच करे जे, that is the you I mean you are then pinpointing on intention जो ज्यादा ईगो को हर्ट हो सकता है। So good managers give feedback on action कि ये चीजें आपने गलत की, not कि भाई तू तो यार you are very careless, दर वक्त આવી મિસ્ટેક થાય છે તારાથી, those kind of things. So these were some things that when I had read this book many years ago, so ये Ken Blanchard और Spencer Johnson, these are like gurus. स्पेंसर जॉनसन का एक और बुक पढ़ा है आप सब लोगों ने, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर दिस, कौन सा बुक था? Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese? Correct. So good. Any other learnings that other people might have that you would like to share? Just one question, like Rashesh पे told कि अगर डैम में होल होता है, सिंगल होल के बाद मल्टीपल में you should stop there, but somewhere I contradict because every time you start complaining or share कि भाई ये गलत कर रहा है, will that be good? Just want to know because practically how to go this I this think situation. the thought here from the book is in the context कि अगर कुछ वो गलती कर रहा है तो पहले ही बता दो, डोंट वेट कि वो गलतियां बार बार, कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा एरर होता है वैसे कि ठीक है क्या बोलवा चाहिए, बट देन दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है, फिर हम लोग को खुद को इंटरनली फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार बार बार ये वही मिस्टेक कर रहा है, एंड देन वी सिट डाउन विद देम एंड से कि यार बार बार तूने 3 महीने पहले भी यही किया था, 4 महीने पहले भी यही किया था, तो वो बोले यार तब मेरे को बता दिया होता, right? So the idea is that Got it. don't wait for it to multiply and don't wait for it. It is not to find fault. Again, the idea is to give some feedback on the intention, so that the action, so that action can be improved. That's the idea. Yeah, Rudri. So in this case, I have
read it somewhere. मतलब there's a communication का way, the sandwich way of feedback. Like you start with the positive feedback, then give a negative feedback, and then again close it with a positive feedback. तो कह के मतलब ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, पर ये ऐसे करता ना तो अच्छा होता, और इसके साथ ये भी बहुत मस्त किया है तूने. अगर ऐसे करे तो we can maybe give regular feedbacks, negative feedbacks with a little buttering. Good point. Good point. We'll be talking about feedback when we talk about team and managing teams वगैरह. So there is a good, I mean ये जो feedback mechanism है सैंडविच में यही बोलते हैं उसको, ये बहुत useful है, but उसका थोड़ा flip side भी है. तो we will discuss that when we have a session. Yes, Niro bhai, please. કેડી તો થેન્ક યુ તે આ પિક્ચર અને આ બુક સજેસ્ટ કરી. રિયલી હું સાચું કહું ને તો સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રોકાયેલો છું ને મારું પ્રોડક્શન સેન્ટર મારાથી ફાર છે. ખરેખર એ મારા માટે કેવી રીતે મેનેજ કરવું ને મારા માટે પ્રોબ્લેમ હતો, કન્ફ્યુઝન કરતો હતો, પણ આને કારણે મને બહુ હેલ્પ થઈ. એક તાજો દાખલો કહું, મારી કરખડીમાં એલેમ્બિક કંપનીમાં કામ ચાલે છે. તો એવરી ટાઈમ શું થાય, અમારા માણસો કહીને જાય કે ભાઈ હું 2 દિવસની રજા લઈને જઉં છું અને 4 દિવસ સુધી પાછા ના આવે. લખેલું જ છે, બધે જ જાણતા હોય. તો આ મારો જૂનો જ માણસ છે કિરણ કરીને, એવું જ થયું. એને કીધું સોમવારે આવવાનું છું, હજી આજે સાઈટ પર પહોંચ્યો છું. તો એવરી ટાઈમ હું શું કરતો હતો, એમને ગાળો દેતો હતો. મારા સુપરવાઇઝરને કહું કે એને ફોન કરીને જબરજસ્ત ફાયરિંગ આપ. પણ આ બુક વાંચ્યા પછી મેં શું કર્યું કે એની અંદરથી સોલ્યુશન જોવાનું ચાલુ કર્યું. તો એનો ફાયદો શું થયો કે એક ફાઇન્ડિંગ એવું આવ્યું કે ત્યાં આગળ કામ મોટું હતું, પણ એસ જ અમને થોડું ઓછું કામ અત્યારે ફ્રન્ટ ખુલ્લી કરીને આપવામાં આવ્યું કે જેની અંદર ખાલી 3 થી 4 જ માણસ કામ કરી શકે. જો એ 2 દિવસ મોડો આવ્યો તો મારી પર દર 2 કલાકે સાઇટ થી ફોન આવે, કાં તો એલેમ્બિક માંથી ફોન આવે, ક્યાં QC માંથી ફોન આવે. તો મેં એમને રિક્વેસ્ટ એવી કરી કે ભાઈ હવે તમે મને વર્ક ફ્રન્ટ એવી રીતે આપો કે મારા 6 થી 7 માણસો કામ કરી શકે. કે કેમ? તો જો ભાઈ માણસ છે, એનું ઘરનું કામ આવવાનું છે, બીમાર પડવાનું છે, તમારું કામ કરવા આવું 7 દિવસનું કામ હોય, 15 દિવસે પતે તો હું ઉઠાઈ નથી શકતો કે 7 દિવસ થઈ ગયા, તમે ફ્રન્ટ નથી આપ્યું, હું માણસ ઉઠાવી દઉં છું. 15 દિવસ 20 દિવસ બી કામ કરું છું. એવી રીતે માણસ ઘેર જાય છે, 1 દિવસ ઉઠે ને 3 દિવસ બી જાય. અને સમજો મારા 3 માણસ છે, 1 કારીગર, 2 હેલ્પર. કારીગરને જ કામ આવી ગયું, મારા 2 માણસો અસ્ત્રા વગરના હજામ થઈ ગયા. તો હવે તમે મને 6 થી 7 માણસને ચાલ આપશો ને તો જ મારું કામ ચાલુ રહેશે. હું 2 દિવસ રાહ જોઈશ, નહીં તો મારા માણસ રિલીવ કરી દઈશ. કારણ કે મારો એક માણસ તો પછી હેરાન આવું કરશે તો પછી મારે તમારે ગાળો ખાવાની. તમારું શું કીધું, તમને ગાળ દે, તમે મને ગાળ દો. એક ખરેખર આ બુક અને મૂવી વાંચવાથી એક આ વસ્તુ મને એક આઈડિયા આવ્યો. Brilliant, very nice. Thank you for that share. Rudrik છે ને એક book બતાવે છે તમને, Obstacle is the way કરીને. It is written by એક author છે રાયન હોલિડે કરીને. Brilliant author છે, બહુ જ સરસ વસ્તુ લખે છે. થઈ શકે તો તમે એના વિડીયોઝ જોજો. There are a lot of videos on YouTube also, and આ book પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તો થઈ શકે તો તમે વાંચજો. બરાબર, good. So once again, thank you very much. Wonderful presentation, Rashesh bhai. And I'm glad that the others had also read the book. So thank you for that share. So this week onward, this month onwards, what I've decided is कि भाई आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, आप लोग इतना बुक और मूवी पढ़ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा लगने लगा मेरे को. So I thought that I will also start sharing some lessons on a very interesting book or a movie that I might have read or watched in the recent times. So for the next 5 minutes, I'm going to talk to you about a very very interesting book जो मैंने actually last year पढ़ी, but इतनी interesting लगी कि मैंने 2 बार पढ़ी. और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बात है कि मेरे पास अभी 3 कॉपीज हो गई ये बुक की. सो दिस बुक इज कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस. इट्स अ ब्रिलियंट बुक. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, and you can find a गुजराती वर्जन ऑफ दिस एज वेल. आई मीन मेरे ऑफिस में जो ऑफिस बॉय है, ही फाउंड द कॉन्सेप्ट सो इंटरेस्टिंग कि वो खुद जाके गुजराती वर्जन लेकर आया और वो ये बुक पढ़ रहा है. Right, so he told me कि Gujarati version is also available. It's a brilliant book, and I want to touch upon 4 key learnings that has been taught about in this book. बराबर, it is ये book जो है, it is basically about how you approach money. Now a lot of people here, you guys are good business people and you probably are better with money than I am.
I am not, or I was not, right? मेरे लिए I mean, I did not have that kind of an orientation where you know, and my wife would complain about it, my mother would complain about it. So Pratik is my CA, he would complain about it कि भाई your money management skills are extremely poor, and it still is, but थोड़ा सा शायद improve हुआ है. बट ये बुक, एंड बहुत सारे बुक्स पढ़े ये टॉपिक पे, बट ये बुक ने जो जो अप्रोच लिया है in terms of how you look at money and wealth, that was something that I found very interesting, right? So these are the four key learnings that I found from the book. One is कि wealth का price है. So America, there is a cost, there is a price that you have to pay for wealth. The second is that there is a cost of ego. जो अपना ego है ना, घमंड, उसका एक cost है. There is a cost associated with it. There is value of time. There is literally value of time, and you can buy time, right? And there is a risk that is associated with luck also. So these are the four things. I'll quickly share with you key learnings from each of this. So what the author says is that हर चीज का एक प्राइस है, ठीक है? हर चीज का एक प्राइस है. So अगर if you are putting money in mutual fund, if you are putting money in some stock or whatever it is, वो जो volatility है कि भाई ऊपर नीचे जा रहा है, उसका जो फियर है कि भाई ये रिटर्न हमको देगा कि नहीं, मैंने ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, इसका भाव बढ़ेगा कि नहीं, जो डाउट हमारे दिमाग में आता है कि भाई मैंने करेक्ट इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, या जो रिग्रेट कि भाई ये SIP कर दिया होता, या ये क्या बोलते हैं IPO में पैसा डाल दिया होता तो मेरा रिटर्न आ जाता. दिस इज द एक्चुअल प्राइस दैट वी पे, ठीक है? सो व्हेन यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, इवन इफ यू पार्क इट समवेयर, ये सब चीजें होने वाली है. देयर विल बी वॉलेटिलिटी, चीजें ऊपर नीचे जाएगी, डर लगेगा हमको कभी ना कभी जब मार्केट नीचे जाएगा कि भाई इज आवर इन्वेस्टमेंट मेकिंग मनी. देयर बी डाउट कि भाई आशीष ने तो यहाँ पे पार्क किया, उसको 18% मिल रहा है, मेरे को 15 ही मिल रहा है, मैंने सही किया कि नहीं किया. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द एक्चुअल प्राइस दैट वी पे, ठीक है? इट्स नॉट मनी टर्म्स, बट दैट इज द प्राइस दैट वी पे. बट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू पे दिस प्राइस. उनको लगता है कि ये सब कहाँ झंझट करें, और उनको लगता है कि ये जो है ये सब बहुत, आई मीन दिस इज द फाइन, सो दे डोंट डू इट. सो वॉलेटिलिटी होता है, निकल जाते हैं, डर लगता है, निकल लेते हैं, डाउट होता है, उधर से उठा के कहीं और डाल देते हैं, राइट? बट दैट्स नॉट. सो इफ वी वांट गुड रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स, देन वी हैव टू पे दिस प्राइस. सो या तो ये प्राइस भरो या तो लॉस का प्राइस भरो. सो दिस पेइंग दिस प्राइस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. और ये माइंडसेट अगर डेवलप होता है तो देन यू विल स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट, बराबर? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और व्हेन द बुक वाज रिटन, वो टाइम पे वॉरेन बफेट का वेल्थ वाज क्लोज टू अबाउट $85 billion, बराबर? But $81 billion came to him after like he turned 61. So a lot of people don't realize कि उसका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग से आया है, उसने वेट किया, राइट? ये वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, ये सब पैसा भरा उसने, ये सब, दिस इज द प्राइस दैट ही पेड, एंड ही वेटेड, एंड वो वेट की वजह से इज द मनी दैट ही इज मेकिंग. द सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज दैट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ ईगो. सो सेविंग हम लोग जनरली, हम लोग को सिखाया जाता है कि सेविंग ये है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो पैसा बचता है वो अपना सेविंग है, बराबर? बट द ऑथर हियर सेज दैट एक्चुअली सेविंग्स इज इनकम माइनस आवर ईगो, ठीक है? सो इफ वी वांट अ बिगर कार, इट इज नॉट फॉर समवन एल्स, इट इज टू फुलफिल आवर ईगो. If we want a more expensive suit, it is not to someone else, it is to fulfill our ego. And this one line जो मेरे साथ रह गया है since the past 6 months since I read this book is, no one is as impressed with your possession as much as you are. So अगर आपके पास बड़ा घर है, आप जितना इम्प्रेस हो ना बड़े घर से, उतना कोई बाहर वाला नहीं है. अगर if you have an Audi, if you have whatever vehicle, how much you are impressed with it, no one else is impressed with it. When people look at that, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास भी हो. They are not impressed कि वो केडी के पास ये है. That is not what is impressing them. They are thinking कि वो if I also had it मजा आता. So they are not impressed with you. You are the only one who is impressed with your own possessions, right? When we realize this,
that is when we also realize कि जो तो फिर actual wealth, अमीरी जिसको बोलते हैं, that is what you don't see. It is not these big cars, it is not these expensive watches and suits and big houses. It is what things you don't see. It is money parked in financial assets. बराबर? So ये वो है जो which has not been converted into stuff yet, right? Another very important thing is that how do we realize कि what is enough for us? हम लोग को सबको सिखाया गया है that we have to keep growing, we have to keep getting better, we have to keep making more money. But what is the meaning of enough for us? When I went to this Himalaya trip last year, there was a very interesting conversation that we had with a lot of people. So उसमें से निकला कि मेजॉरिटी टाइम हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जो अभी एक लेवल के बाद वंस यू हैव एक्स मनी उसके बाद सब ओके है. आई मीन इवन इफ यू डोंट मेक मोर मनी आप लोग अपने सब एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं. मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ले लो, उसके बाद तो देन इट इज ओके नो. बट पीपल स्टिल वांट टू मेक मोर मनी एंड द एक्सक्यूज दैट दे गिव इज कि हम लोग हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, राइट? बट द आइडिया इज दैट इफ यू आर रेजिंग योर किड्स वेल एंड इफ दे आर गुड तो दे विल फाइंड वेज टू मेक देयर ओन मनी, है ना? एंड इफ यू नॉट एंड इफ दे टर्न आउट टू बी बैड, आपके पास जितना भी पैसा हो वो कम पड़ने वाला है, right? So the idea is that you have to realize for yourselves that what is enough, right? And that definition has to generally क्या होता है कि एक हो गया तो ऐसा लगता है कि नहीं, now let me change my goal post. So पहले SUV था, now my goal post is कि Audi है, next my goal post is Mercedes है. तो our goal post keeps changing, right? And because of that, stress and everything else also changes. So figuring out what this enough is for us. The third most important thing is value of time, right? So अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो टाइम पकड़ो, right? The more time you are invested, the more money you will make. Like I said, $84.5 billion था वॉरेन बफेट का वेल्थ, उसमें से 81.5 उसके 65th बर्थडे के बाद आया, and he has been investing since the age of 10. ठीक है? So it took 55 years for him to get this money, but no one talks about it. Everyone says कि वो investment smart है, but the idea is that he is very patient with it. He has money. Most important thing, the biggest thing that you can buy from money is control over your time. This freedom to choose कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं. ये जिस दिन मेरे को टाइम मिल गया, ये जिस दिन मेरे को ability मिल गया, that day I am very wealthy. Do I have the freedom to wake up tomorrow morning and say that I will not go to work for the next 1 week, but my business will run on its own, right? If you have that ability, then you are probably already very wealthy, because that 1 week you could spend doing something else. ठीक है? So something to think about. And the last is risk of luck. अब इसका context ये है that हर success 100% effort के ऊपर ही होगा, वो guaranteed नहीं है. There is always something which is a factor of luck. So Bill Gates for example का example. So Bill Gates was very lucky कि वो एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे कंप्यूटर था. When he was in school, there were like 1 or 2 schools जहाँ पे कंप्यूटर था. वो बहुत लकी था कि वो ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे कंप्यूटर था. अगर वो दूसरे स्कूल में गया होता तो शायद वो बिल गेट्स नहीं होता, right? So that's the luck that he has. So risk and luck जो है, they are हमशक्ल, they are doppelgangers of each other. So risk भी होता है, luck भी होता है. So we cannot completely blindly rely on बाकी सब लोगों ने जो किया है वही चीजें हम लोग भी करें तो हमको सक्सेस मिलेगा, वो जरूरी नहीं है. ठीक है? So we have to stop assuming के just because मेहनत करें, just because decisions correct लो तो भी outcome, like if it's not necessary. There is a certain element of risk and luck that we have to keep in mind. So this is the book. That's it. These are 4 key learnings that I got from the book and I found it very interesting. I highly recommend it. किसी को चाहिए तो मेरे पास से ले जाना. I love the book. Rudrik has read it. I don't know how many of other people have read it, but अगर आपको chance मिले तो do read it. All right. Done. Anything else that you guys want to ask? Yes. I would just like to add one thing, KD. When you were talking about the assets and investing in assets doesn't give satisfaction for yourself, I was just realizing that I come from a business background. Like
We Sindhis are basically business community. So this one thing I have been hearing since my childhood, my dad said, my mama said, my bua's husband always would say कि ये जितनी गाड़ियां खरीदोगे, जितना तुम लोग नए नए मोबाइल खरीदोगे, ये सब वेस्ट ऑफ पैसा है, बिकॉज इससे तुम्हारा पैसा बढ़ेगा नहीं. So we used to really feel very bad कि सारी इतना पैसा आने के बाद हम उसको इस्तेमाल ना करें तो क्या फायदा. But they would say कि this is not the investment of money. This is like, so इससे अच्छा है कि तुम छोटी कार में घूमो और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करो. So that is how I have grown up with my own family background. Very interesting. Thank you for that share, man. Yes, Pratik. केडी मैंने एकदम इनिशियली आपको पता है वो पूछा था why certain communities are good with business, certain So I think this is one of the answers for that. this is the yeah, the upbringing, the culture. Upbringing. Correct. Absolutely. Now, Pratik, then Nirav bhai, then Jayendra bhai. So there are two things which I have learned from my father. I will share here. कि रुपयो कमाओ ने तो 25 पैसा वापरवाना. 75 पैसा has to be either it can be in business or would be saving, which I realized during the lockdown. That time, many had lost their businesses, many has lost their jobs, and there were no funding, or there are funding which were 50%. So that is one of the things which value money, which already is coordinated with what KD has said. And secondly, which ma'am right now told, कि अगर आज मैं ऑडी में घूमता हूँ और अगर मैं छोटी कार लूंगा पर मैं और कोई प्रॉपर्टी में डालूंगा ना तो उसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ने वाली है, पर कार का डिफरेंस होने वाला है. So these are the two things which I agree with the point and the book which you gave the summarize. Perfect. So there are two which. So your I father would was like. the one who made sure that you will become a CA. Chalo, बढ़िया. Very nice. Nirav bhai, quickly, 30 seconds, because we are beyond time today. Beyond time today. 30 सेकंड मैं तो एक्चुअली ऑडियो मोकल्यो તમારો. Yes. એક થોડી બ્રીફ આપી દો. 30 સેકન્ડ માં તો નહીં પતે, જો બાકી બધાનો ટાઈમ હોય તો હું બોલું. तो पहला आप Everyone बताइए are दीजिए, ready? then whoever wants to discuss can stay back and then we Okay. can discuss. बराबर? Okay. Jayendra bhai. Okay, just regarding the one books I come across, I Am the Mind. Okay. It's very interesting. That says the master key to achieve anything you want. There's a mind is there. Now all is said, mind is said, everything is said. I just come across from one doctor. I went there to check, get my eyes checked. The one example is a very good one. There are 4 kinds of the horse. The one horse which start running, so showing the shadow of the wheel, he start running. There are another horse, you have to show them its wheel, then it runs. There are third horse, sometimes you have to weep there, then it runs. The fourth horse, even if you weep it, he will not budge it. So I want to see in our particular life, which most of the 99% are the 4th kind of the horse. It says the mind. Wonderful. So it's a I'll very check this book. interesting, it's a very analysis guy. Just I started Wonderful. it. Wonderful. Thank you. Thank you very much. Yes, Uri ma'am. Yeah, one quick bit. So I do relate with what Priyanka mentioned, but only after marriage. and, and the second one is that when we talk about assets, our talents, our capabilities are also assets, and which correlates with time converted to money. So I think we may want to continue investing in that asset also by joining this program. Absolutely. Thank you very much for that. So joke ये है कि उर्वी मैम married into a Sindhi family. Hence she said कि वो learning उनको शादी के बाद आया. Thank you very much, Urvi ma'am. Good. Perfect. Wonderful. Right. Thank you very much. We had Mr. Bhavesh Patel also. Bhavesh bhai is also here as a visitor guest. So Bhavesh bhai, thank you very much for joining. I don't know if you're here. But before I wrap up, I want to quickly ask 2 things. One is batch 1, batch 2, both people are here. So I want to ask someone from batch 1 कि भाई आपका 6 महीने का experience कैसा रहा है? If someone wants to share. So Pratik, do you want to quickly share? So in 6 months, first I started reading the books, actually, which was not there with me. Secondly, I started to see the situation and other things in a different way. कि भाई ये करने से क्या क्या हो सकता है, and started implementing. कि जब हमको तकलीफ होती है तो how things got, because from LLC the things have been changing from me, plus getting the inputs from all of us. Like I was not able to connect to this many people at a single point of time. Now LLC is giving me opportunity to talk with all of you and to share and discuss the thing.
इसमें बोलते हैं ना गली में भी कुत्ता शेर होता है, but thing changes when it come before all of us. I 1 + 1 2 ही होता है, but there are different ways. So which LLC has given me that opportunity. And one of most thing I like the daily mails. Sometimes I skip. I will be honest. I have not read many in between, which already Akshay will highlight. So he has a track record how and when we read the mail. But these are good. That sometimes we realize many small points we missed, but we don't accept that. From LLC, I have learned to accept. Maybe ये गलती हुई है. It's not like somebody else has done, but I have seen in different way. So this one of the key learning which I have learned from LLC, and now started okay. Yeah, मैंने ये समझा था, ये होना नहीं चाहिए था. That was the thing which I would like to share. And it was a great platform. I will keep in touch. Like it is good. We should recommend many so that many get opportunity to learn more things. Brilliant. Thank you very much. Thanks, KD, for that. the opportunity. Thank you. Thank you. Shashi bhai, yes. 1 minute, KD, before Shashi Yeah. bhai says. Please, please. Prateek, I would sleep very nicely today. Your words have really motivated. I know Urbi ma'am will agree with me. I am a person who has to be pushed, which